Welcome to the second part of trigonometry where we will do second exercise, exercise 8.2. But before I do exercise 8.2, we will revise 8.1, SOHCAHTOA and the related concepts. You have to write down and make a list of formulas which I am making you right now based on the first exercise, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Sine is equal to opposite upon hypo. Cos is equal to adjacent upon hypo. Tan is equal to opposite upon adjacent. Sine का इनवर्स cosec is equal to hypo upon opposite. Cos का इनवर्स sec is equal to hypo upon adjacent. Tan का इनवर्स cot is equal to adjacent upon opposite. Based on these six things, इनवर्स रिलेशनशिप को मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं? साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक और cosec is equal to 1 upon sine. This is how you write inverse relationship. This is a mini formula. Similarly, cos is equal to 1 upon sec. Sec is equal to 1 upon cos. Tan is equal to 1 upon cot, or cot is equal to 1 upon tan. Based on this inverse relationship, I can say that sine multiplied by cosec is 1, क्योंकि cosec सब सामने जाएगा या sin जब सामने जाएगा तो फॉर्मूला होगा sin into cosec is equal to 1. Cos into sec is equal to 1. Tan into cot is equal to 1. And lastly, tan is equal to sine by cos and cot is equal to cos by sine. This much you have to remember by heart, which is the take home from the first exercise. Let's jump to the second exercise now. The table. Mathematicians found out that no matter what the size of the triangle, the ratios do not depend on the size, the ratios depend on the angle. The ratios, I am repeating, the ratios do not depend on the size of the triangle, the ratios depend on the angle. और ये कैसे प्रूव किया? एक मैथमेटिशियन ने 1 वर्सेस 2 का एक ट्राइंगल क्रिएट किया, विच इज वेरी इजी टू ड्रॉ. बेस को 2 बनाओ और ये 1. इसको 4 लिया और इसको 8 और इसको 10 और 20 लिया. 1 और 2 का पाइथा किया √5. 4 और 8 का पाइथा किया √80. 20 और 10 का पाइथा किया √500. It doesn't matter. What matters is whenever they used to find out, और ये एंगल सेम था, थीटा थीटा थीटा. Then he found out tan theta opposite upon adjacent. Tan theta opposite upon adjacent. Tan theta opposite upon adjacent. They found out that each time the value of tan theta was same.
Similarly, they found out sine. So opposite upon hypo. So opposite upon hypo. But remember, root 80 is 4 root 5. And sine theta is so opposite upon hypo. But root 500 is 10 root 5. Finally, the value of sine came to be same. तो क्या किया मैथमेटिशियन ने? He created some standard ratios कि अगर एंगल ये है तो रेशियो फिक्स हो जाता है. और वैसे 4 अलग अलग एंगल के लिए उसने टेबल बनाया. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, जिसमें से 0 और 90 टेक्निकली हो ही नहीं सकता. राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 है फिक्स, तो दूसरा 90 हो ही नहीं सकता, और दूसरा 0 भी नहीं हो सकता, वरना ट्रायंगल बनेगा ही नहीं. बट स्टिल थियोरेटिकली यू कैन फाइंड द वैल्यूज, और ये टेबल बाय हार्ट करना है. सो दिस टेबल आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ योर एंगल इज फिक्स्ड. तो अगर एंगल पता है तो ट्राइंगल की साइज या सोका तो हमें ऑपोजिट एडजेसेंट हाइपो की लेंथ जानने की जरूरत ही नहीं है, रेशियो वही होगा हमेशा. जैसे सर्कल चैप्टर में बाप बेटा रिलेशनशिप था. सर्कल में a chord subtends an angle at the center and it also subtends an angle on the major arc. तो वो फिक्स था कि अगर ये x है तो ये 2x होगा. मुझे सर्कल का रेडियस जानने की जरूरत नहीं है, ये एंगल जानने की जरूरत नहीं है. द रिलेशनशिप इज फिक्स्ड. सिमिलरली हियर द रिलेशनशिप्स आर फिक्स्ड. अब ये पूरा टेबल बाय हार्ट करने का ट्रिक है जो तुम्हें लिखना पड़ेगा. सो फर्स्ट क्रिएट दिस ब्लैंक टेबल विथ थिक रोज. थिक मतलब बुक की एक रो नहीं, 2 या 3 रो लेना. तो साइन के लिए 3 रोज ले लेना. सो 3 3 3 3 3 करके पूरा पेज भर जाएगा. तो एक बड़ा सा टेबल बनाओ. पॉज द वीडियो, मेक द टेबल एंड देन ओनली कंटिन्यू. द ट्रिक टू मेक द टेबल. देर इज नो ट्रिक टू बाय हार्ट द टेबल. टेबल बाय हार्ट करने की कोई ट्रिक नहीं है, बट टेबल बनाने की ट्रिक है. देखो कैसे. स्टेप नंबर 1, राइट 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4 का रूट डिवाइडेड बाय 2. So 0 1 2 3 4 का रूट डिवाइड बाय 2. इतना याद कर लो तो साइन की सारी वैल्यूज मिल जाएगी. रूट 0 इज 0, 0 अपॉन 2 इज 0. रूट 1 इज 1, तो 1 बाय 2. रूट 2 अपॉन 2 आई कैन कैंसल, क्योंकि 2 इज मेड अप ऑफ रूट 2 एंड रूट 2. तो एक एक रूट 2 कट हो जाएगा. देयरफॉर रिजल्ट विल बी 1 अपॉन रूट 2. रूट 3 बाई 2 सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो यही वैल्यू. एंड रूट 4 मतलब 2 एंड 2 अपॉन 2 इज 1. 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 एंड 1. कंपेयर 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 एंड 1. तो ये हमने बनाया साइन. अब कॉस को सिर्फ फ्लिप करना है. साइन को फ्लिप करो. फ्लिप मतलब जो लास्ट वैल्यू है 1 वो पहले. रूट 3 बाई 2 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 एंड 0. तो कॉस की वैल्यू मिल गई.
फिर साइन डिवाइडेड बाय कॉस इज tan, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 2 कट, फाइनल आंसर √3, एंड 1/0 इज अनडिफाइंड, जिसको हम इंफिनिटी बुला सकते हैं या अनडिफाइंड लिख सकते हैं। तो tan मिल गया। अब tan को फ्लिप करो तो cot मिल जाएगा। फ्लिप मतलब लास्ट वैल्यू पहले, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, और जो पहला वैल्यू था 0 वो लास्ट हो गया। कॉसेक साइन का इनवर्स होता है। साइन का इनवर्स मतलब 0 की जगह 1/0, एंड 1/0 इज इंफिनिटी। 1/2 का इनवर्स 2, 1/√2 का इनवर्स √2, √3/2 का इनवर्स 2/√3, एंड 1 का इनवर्स 1। और कॉसेक की वैल्यू मिल गई तो उसको फ्लिप करके लिख दो तो सेक की वैल्यू मिल जाएगी। 1 लास्ट है तो वो फर्स्ट हो गया, 2/√3, √2, 2 एंड इंफिनिटी। तो जिसने मेरे साथ लिखा है उनको थोड़ा सा समझ में आएगा, वापस एक बार देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड इट परफेक्टली। While doing the sums of exercise 8.2, I highly recommend to keep this table in front of you. ये टेबल तुम्हारे सामने होगा तो जल्दी समझ में आएगा सब कुछ। एक्सरसाइज 8.2 श्री गणेश करते हैं। sin 60, you have to copy the question, into cos 30 plus sin 30 into cos 60. sin 60 √3/2, cos 30 √3/2, sin 30 1/2, cos 60 1/2, √3 into √3 3, 2 2s are 4, 1/2 into 1/2 1/4। एलसीएम लेने की खास जरूरत नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है। फाइनल आंसर इज 1। पूरी एक्सरसाइज यही है, वैल्यू रखो एंड सिंप्लीफाई। बट बिफोर दैट ऑलवेज कॉपी द क्वेश्चन। आफ्टर कॉपिंग क्वेश्चन ऑलवेज क्रिएट द स्ट्रक्चर। एम्प्टी स्ट्रक्चर क्रिएट कर दो तो सिली मिस्टेक नहीं होगी। सिली मिस्टेक होती है प्लस माइनस और स्क्वायर की, बट आई हैव कॉपीड द स्ट्रक्चर करेक्टली। अब कोई गलती नहीं हो सकती, सिर्फ वैल्यूज डालनी है जो टेबल में से देखनी है। tan 45 इज 1, cos 30 is √3/2, and sin 60 is also √3/2. 2 into 1 square 2 plus 3/4 minus 3/4. Final answer 2. Cos 45 upon sec 30 प्लस cosec 30। तो पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद वैल्यूज। 1/√2, sec 30 is 2/√3, cosec 30 is 2। 1/√2 को टच मत करो, बट नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। 2/√3 प्लस 2, 2 प्लस ये √3 यहां मल्टीप्लाई होगा 2√3 बाय √3। नाउ दिस इज द फॉर्मेट called a by b by c by d। a by b by c by d।
और ए बाई बी बाई सी बाई डी में सी बाई डी को उल्टा करके मल्टीप्लाई करना सिखाया था, मतलब ए बाई बी मल्टीप्लाइड बाय डी बाई सी, मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन 2 + 2 √3 इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 इंटू 2 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3 2√6. बट द सम इज नॉट ओवर. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में 2 कॉमन निकाल लो. सो √2 प्लस √6 इज इक्वल टू नहीं बे, मल्टीप्लाई √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6, √3 इंटू √2 माइनस √6 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 6, √3 इंटू √2 √6, √3 इंटू √6 √18 अपॉन 2 माइनस 6 माइनस 4 2 ज़ा माइनस 8. So final answer √6 minus 3√2 upon -8. But denominator नेगेटिव नहीं हो सकता, therefore I am flipping the numerator. न्यूमरेटर फ्लिप करने से साइन चेंज हो जाती, and this is your perfect answer including rationalize the denominator. So it looks a very innocent sum. नंबर्स डालने के बाद भी रियलाइज नहीं होता है, but a by b by c by d and rationalize the denominator makes it slightly complex. नंबर सिस्टम 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 1 करो 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 बोल के थक गया. जिसने भी 9th स्टैंडर्ड में नंबर सिस्टम रूट वाला कैलकुलेशन अच्छे से सीखा होगा उसको ट्रिगो इजी लगेगा. एलसीएम करो, एलसीएम 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 बोल बोल के थक गया, वो अब काम आएगा. sin 30 1/2 tan 45 1 cosec 60 2/√3 sec 30 2/√3 cos 60 1/2 cot 45 1. विच मीन्स न्यूमरेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3. डिनोमिनेटर 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1/1. What is the common denominator या LCM 2√3. 2 को 2√3 बनाने के लिए √3 मल्टीप्लाई करो ऊपर, प्लस डिनोमिनेटर 1 है, 1 को 2√3 बनाने के लिए 2√3 मल्टीप्लाई करो, माइनस √3 इज ऑलरेडी देयर, 2√3 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4. दिस इज कॉल्ड टेकिंग एलसीएम. 8th स्टैंडर्ड से पीछे पढ़ा हूं तुम्हारे के, सीख जाओ सीख जाओ सीख जाओ. अगेन द एलसीएम इज 2√3 4 प्लस √3 प्लस 2√3. आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू आर फ्री टू कैंसल इफ द डिनोमिनेटर्स आर कॉमन. तो a बाई बी बाई सी बाई डी में ये दो कट हो सकते हैं अगर सेम है तो. देयरफॉर द न्यूमरेटर विच कम्स इज 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4. And now you hardcore enter number system of 9th standard, rationalize the denominator 3√3 minus 4,
3√3 minus 4. Numerator becomes 3√3 minus 4 whole square, and this becomes 27 minus 16. 3√3 minus 4 whole square is 27 minus 24√3 plus 16 upon 11. Therefore, the final answer is 27 plus 16, 43 minus 24√3 upon 11. Structure 5 into something square plus 4 into something square minus something square upon something square plus something square. वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर बनाओ पहले और क्वेश्चन जरूर कॉपी करना, वरना यू आर फूलिंग योर सेल्फ. तो क्वेश्चन, स्ट्रक्चर, एंड देन स्लोली यू हैव टू पुट द वैल्यूज. ट्राई करो याद करने की. टेबल देखते देखते अपने आप याद रह जाएगा. sec 30 tan 45, sin 30 cos 30. That's all. This is basic maths. इसका 10 स्टैंडर्ड के साथ कोई लेना देना ही नहीं है. 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 into 5, 5/4 plus 2 2s are 4, 4 4s are 16/3 minus 1 मतलब 1/1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर. न्यूमरेटर का एलसीएम विल कम 12. 15 plus 64 minus 12, this is LCM, upon 1 plus 3/4. ये पूरा 1 हो गया. 1 plus 3 4, 4 4 कट 1, तो बचा 64 plus 15 minus 12, 67 upon 12. That's the final answer because this entire thing became 1. तो 2 ही बचा, तो it's A/B, नॉर्मल सम. चूज द करेक्ट ऑप्शन. कोई बड़ी बात नहीं है. सॉल्व करो. 2 tan 30, 1 plus tan square 30, 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30. tan 30 मतलब 1 upon √3. Simplify. 2 into 1 upon √3 is 2 upon √3 और 1/√3 का स्क्वायर 1 plus 1/√3. LCM 3 plus 1/3. A/B/C/D is equal to A/B मल्टीप्लाइड बाय, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई, 3/4. 2 and 4 कट, √3 और 3 कट, तो ऊपर √3 बचेगा. देयरफॉर फाइनल आंसर शुड बी √3/2. बट आस्क योरसेल्फ दैट √3/2 इज व्हाट. लुक एट द टेबल. √3/2 मतलब sin 60 होता है. तो टेबल दोनों तरीके से यूज करना पड़ेगा. tan 30 है तो उसकी वैल्यू, और अगर वैल्यू है तो वो tan 30 है, ये दोनों पता होना चाहिए. सो √3/2 इज sin 60, cos 60 1/2 होता है, देयरफॉर दिस इज नॉट द ऑप्शन. tan 60 √3 होता है, देयरफॉर दिस इज नॉट द ऑप्शन.
साइन 30 1/2 होता है, दिस इज नॉट द ऑप्शन, इट इज साइन 60. 1 minus tan square upon 1 square tan square 45, 1 minus something square upon 1 plus something square, और वो समथिंग है tan 45 एंड tan 45 is 1. So 1 minus 1 square 1 plus 1 square is 0 upon 2 is 0. Answer. Sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to what? थोड़ा सा फनी है, ध्यान से देखना. साइन, ओके, कैसे निकाले इसका आंसर. एक लॉन्ग कट है और वो लॉन्ग कट ऐसा है, a इज इक्वल टू वॉट. तो इफ a इज 0 तो साइन डबल ऑफ a मतलब साइन 0 इज 2 इंटू साइन a मतलब साइन 0. तो साइन 0 0 साइन 0 0, आंसर इज 0 डिग्री. दूसरा कोई ट्राई करते, a को 30 ले लो तो साइन 2a मतलब डबल ऑफ a मतलब डबल ऑफ 30 मतलब 60 इज 2 इंटू साइन a मतलब 30. साइन 60 is √3/2 and sin 30 is 1/2. √3/2 is equal to 1 is wrong. Therefore, first is the option. 45 लोगे तो भी wrong आएगा, 60 लोगे तो भी wrong आएगा. So you have to literally substitute and find the answer. 2 tan 30. 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30. tan 30 की वैल्यू 1 upon √3. So 2 upon √3 upon 1 minus 1/3. LCM 3 minus 1/3. 2/3. A by B by C by D is 2 by √3 into 3/2. 2 2 कट, √3 and 3 कट, फाइनली बचेगा √3. लेकिन √3 तो ऑप्शन में है ही नहीं. तो थिंक tan 60 is √3. Therefore आंसर इज tan 60. तो टेबल इतना मस्त बाय हार्ट होना चाहिए दैट यू कैन रिलेट that tan 60 is √3 and √3 is tan 60. If tan a plus b is √3 and tan a minus b is 1 by √3, blah 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 blah, find a by b. If tan a plus b is equal to √3 but टेबल के हिसाब से tan 60 इज √3, इसका मतलब है a plus b is 60. If tan a minus b is 1 by √3 but टेबल के हिसाब से tan 30 is 1 by √3. Therefore, a minus b is 30. Elimination. Elimination करो, एंगल a 45 और एंगल b 15 आ जाएगा.
State whether the following is true or false. इंटेलिजेंट सब्सटीट्यूशन. लेट मुझे प्रूव करना है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. सच है या झूठ? वो सच और झूठ का फैसला करने के लिए ए को 30 और बी को भी 30 ले लो. ए भी 30 बी भी 30, तुम कुछ भी ले सकते हो. तो साइन 30 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 30. ये हो गया इक्वेशन. मीन्स साइन 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 30. पुट द वैल्यू ऑफ साइन 60 √3/2 is 1/2 plus 1/2 means √3/2 is 1. Answer is false. ये इक्वेशन गलत है. साइन ऑफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी. तुम्हें एक होमवर्क करना है छोटा सा. पॉज द वीडियो और a को 0 और b को 30 लो. यू विल स्टिल गेट समथिंग उटपटांग. a को 45 b को 45 लो तो भी कुछ उटपटांग आएगा. तो ऑलवेज चूज सच वैल्यू वेयर यू कैन सी द टेबल. तो साइन 60 मैं टेबल में देख सकता हूं, मैं 30 टेबल में देख सकता हूं. साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब 30 होगा तो मैं टेबल में देख सकता हूँ. 45 प्लस 45 90 होगा, मैं टेबल में देख सकता हूँ. सो चूज सच वैल्यूज वेयर यू कैन सी इन द टेबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज इट्स नॉट इक्वल, देयरफॉर आंसर इज फॉल्स. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. तो साइन थीटा की वैल्यूज एक लाइन में याद रहनी चाहिए. 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1. And simple, 0 से बड़ा हाफ, हाफ से बड़ा 1. Therefore the value of sine is increasing. It is true. तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है. ये फैक्ट है, इसको बाय हार्ट कर लो. और ये फैक्ट के लिए 1/√2 की वैल्यू और √3/2 की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है. 0 to half to 1, it is always increasing slowly. Value of cos increases as theta increases. cos थीटा की सारी वैल्यूज बाय हार्ट होनी चाहिए. 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. 1 कम हो गया हाफ, हाफ कम हो गया 0. इंक्रीजेज नहीं डिक्रीजेज, देयरफॉर आंसर इज फॉल्स. साइन थीटा इज कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. दुनिया के कोई भी वैल्यू लो थीटा की, साइन और कॉस सेम है. लेट थीटा इज इक्वल टू 30. तो साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30 बोल रहा है सम, मतलब 1/2 इज इक्वल टू √3/2. असंभव, देयरफॉर आंसर इज फॉल्स. cot a is not defined for a0. a0 मतलब cot 0 और cot 0 not defined या infinite, therefore answer is true. That's the end of second exercise. It was this simple. But ये simple exercise को practice लगेगी. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही हाथ बैठेगा. सो योर होमवर्क आई एम गोइंग टू शो यू नाउ. आई थिंक यहीं पे था. 10th मैथ्स ट्रिको.
exercise 9.2. So I'm going to send you the photograph of this as your homework. Verify. बहुत सारे हैं, 1 2 3 4, तो 4 बार तुमको वैल्यूज पुट करके 4 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी और वो चारों 4 सेम आएगी ही, एंड हेंस यू विल बी एबल टू वेरीफाई. Sin 60 is equal to, so structure something is equal to 2 multiplied by something multiplied by something. LHS RHS सेम दिखा दो, आंसर आ जाएगा. Verify sin 60 is 2 tan 30 upon 1 tan square 30. तो ये एक वैल्यू LHS ओवर, और RHS के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 1 प्लस समथिंग स्क्वायर, ये दोनों की वैल्यू सेम ले आओ, तुम्हारा सम खत्म. आई एम स्किपिंग देम बिकॉज दे आर ऑल सेम. ये देखो मजेदार क्वेश्चन. इसमें तुमको ट्रिगो की जरूरत, ओके देखते हैं. आई एम गोइंग टू टीच यू दिस because it's not there in your textbook. In triangle ABC, B is 90. Okay, B 90, तो ऑटोमेटिक A और B बाकी के दो एंगल हो गए. Find the measure of the parts of the triangle other than the ones given below. Parts of the triangle means 3 sides and 3 angles, जिसमें से एक एंगल तो दिया हुआ है, तो ये काम कम हो गया. इट्स वेरी क्रिएटिव सम जिसमें ट्रिगो यूज हो भी सकता है और नहीं भी. एंगल C 45 गिवन, तो A मिल गया. 90 और 45 का बचा हुआ एंगल 45, तो ऑल 3 एंगल्स डन. AB 5, तो अगर ये 45 के सामने 5 है तो दूसरे 45 के सामने 5 ही होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल. और 5 का पाई था 5√2 सम ओवर. सो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एंड पाइथागोरस, यू डोंट नीड रियल ट्रिग्नोमेट्री. अगेन सेम सम, B is 90, A C, एंगल A 30. अगर एंगल A 30 है और ये 90 है तो ऑटोमेटिक ये 60 मिल गया. AC 10. अब यू हैव टू फाइंड आउट दीज 2 साइड्स. ये हाइपो है, तो मैं एक ऐसा रेशियो चूज करता हूं आउट ऑफ सोह का तोआ. आई चूज वन रेशियो वेर हाइपो कम्स. मैं साइन ही ले लेता हूं सोह. एट रेफरेंस एंगल 60. यू कैन टेक 30 ऑल्सो, बट आई एम टेकिंग 60 एज माई रेफरेंस एंगल. तो मैं लिखूंगा साइन 60. यहाँ पे थीटा लिखो तो साइन थीटा, कुछ नहीं लिखो तो साइन सी, और 60 है तो साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट AB अपॉन हाइपो 10. साइन 60 की वैल्यू तुमको पता है, √3/2 इज AB अपॉन 10. क्रॉस मल्टीप्लाई, AB मिल गया 5√3. अब मुझे एडजेसेंट फाइंड करनी है, तो कॉस यूज करो. का कॉस 60 इज एडजेसेंट, मतलब BC अपॉन हाइपो 10. कॉस 60 1/2, BC अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इज इक्वल टू 5. एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट
विच विल इंक्रीज योर स्पीड ड्रेस्टिकली। और वो शॉर्टकट को ऐसे याद रखना है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड इज हाफ ऑफ हाइपो। इट्स अ फिक्स्ड रूल। दुनिया के किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 30 डिग्री अगर है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाफ ऑफ हाइपो होती है। हो रहा है यहाँ पे, ये रहा 30, 30 के सामने 5 एंड 5 इज हाफ ऑफ हाइपो। तो याद रखना 30 के सामने हाफ ऑफ हाइपो बहुत काम आएगा। और 60 के सामने अगर शौक है बाय हार्ट करने का तो 60 के सामने हाफ ऑफ हाइपो √3। 60 डिग्री के सामने वाली साइड इज हाफ ऑफ हाइपो √3, मतलब हाँ ठीक है, हाफ ऑफ हाइपो इंटू √3। दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। और यू कैन से √3 हाइपो बाई 2 और इसको हाइपो बाई 2। हाफ ऑफ हाइपो मीन्स हाइपो बाई 2 एंड √3 हाइपो बाई 2। सो इट्स वेरी क्विक एंड वेरी इजी टू फाइंड आउट एंगल्स, नहीं साइड्स, इफ द एंगल इज गिवन। B90 AC, AC 6 √2, BC 3 √6. We can do Pytha to find out AB. Pytha is hypo square is side square plus side square. 6 √2 square is AB square plus 3 √6 square. Six 9s are 54. 54 minus 6 plus 12 18. AB square 18. Therefore AB is 3 √2. तो मिल गई तीनों साइड। अगर मैं पाइथा ना करूं, then what are my options? Then my option is to do this. I choose C as my theta, hypo given, adjacent given, opposite missing. तो सोह काह तोआ में से कौन सा रेशियो चूज करे जिसमें हाइपो और एडजेसेंट आता है? काह, कॉस, एंगल तो पता नहीं है, कॉस सी इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो। 3 और 6 कट, √6 अपॉन 2 √2 एंड √6 कट, √3/2 बचा। तो कॉस सी अगर √3/2 है तो टेबल देखो, एंगल सी क्या है? एंगल सी मिल गया, कॉस 30 इज √3/2, इसलिए एंगल सी 30। एंड नाउ 30 के सामने हाफ ऑफ हाइपो, 6 √2 का आधा 3 √2। शॉर्टकट जो हमने पहले ही निकाल के रखा था, AB is 3 √2. So there are many ways to do these sums. They are quite interesting. I leave it on you how to do the last sum. Very very good sum. Rectangle ABCD. Fine. क्या हो रहा है? Rectangle ABCD. AB 20, तो CD भी 20 रेक्टेंगल है भाई। BAC 60, एंगल BAC
सी, मतलब ए और सी ज्वाइन करना पड़ेगा। बी ए सी 60, रेक्टेंगल है तो बी 90, 60 90 तो ये 30, 30 के सामने हाफ ऑफ हाइपो तो हाइपो 40, और 60 के सामने हाफ ऑफ हाइपो √3। ये तो सब शॉर्टकट है इसलिए, बट यू विल हैव टू डू ट्रिग्नोमेट्री, सो का तोआ करके मिसिंग साइड्स फाइंड करनी है विथ फुल मेथड। दिस इज योर होमवर्क एंड आई एम गोइंग टू चेक इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और ट्रिक, दिस इज द सेकेंड trick of this particular homework which I am telling you. If sin theta is equal to cos theta, then what? वो बाय हार्ट करना है। अगर किसी ट्राइंगल का साइन और कॉस की वैल्यू सेम है, देन थीटा हैज टू बी कंपल्सरीली 45। आई मीन लुक एट द टेबल, टेबल में साइन और कॉस की वैल्यू सिर्फ तब सेम होती है जब थीटा 45 होता है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा गिवन का इनडायरेक्ट मतलब है थीटा इज 45, विच यू कैन सिंपली राइट डाउन। और अगर थीटा 45, तो तुम्हें कौन रोक सकता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस? ऑल यू हैव टू डू इज पुट थीटा की जगह 45 एंड पुट द वैल्यूज एंड फाइंड दिस आंसर। वेरी वेरी गुड सम। 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा, और ये तुम्हारा होमवर्क है, तो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क राइट अवे, वरना अभी दिखोगे फिर होमवर्क करने बैठोगे तब समझ में नहीं आएगा। सो बेटर इज टू फिनिश योर होमवर्क राइट अवे। 3 साइन अल्फा इज 2 कॉस अल्फा, 3 साइन अल्फा, अल्फा बीटा थीटा गामा कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैन आई टेक कॉस नीचे और ये 3 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई का उल्टा, तो कॉस मल्टीप्लाई में था सामने डिवाइड हो गया, और 3 मल्टीप्लाई में था वो सामने जाके डिवाइड हो गया। बट साइन अपॉन कॉस इज tan। सी फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज द फॉर्मूला। इस लेक्चर के बिगिनिंग में मैंने जो लिखवाया थे फॉर्मूला, उसमें पहली बार ये यूज हुआ दैट tan मतलब साइन अपॉन कॉस। एक क्या इजी सम हो गया, tan की वैल्यू मिल गई, सब जगह tan है। All you have to do is put 2/3 everywhere and prove that the answer of this entire calculation is 1. It's very easy. जहां जहां a है वहां वहां 30 रख दो and prove LHS equal to RHS। जहां जहां a है वहां 30 रखो, और जहां जहां बी है वहां 60 रखो, और 30 60 की वैल्यूज टेबल में मिलेगी। बट रिमेंबर, वेन एवर यू राइट LHS इज इक्वल टू साइन a प्लस बी, तो तुम्हें a और b का टोटल करना है, मतलब साइन 90 की वैल्यू डालनी है, मतलब 1, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट RHS, वो भी 1 आना ही चाहिए। Two formulas are given. If sine of a minus b is equal to this, find sine 15. And if the value of cos a minus b is this, find cos 15. तो साइन 15 और cos 15, और 15 डिग्री टेबल में तो है ही नहीं। इंटेलिजेंट यूज ऑफ वैल्यू ऑफ a एंड b, let a is equal to 45
b इज इक्वल टू 30, तो a माइनस बी क्या हो गया 15। तो LHS साइन a माइनस बी, मतलब साइन 15 इज इक्वल टू RHS साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। सो ए और बी का इंटेलिजेंट अजम्पशन किया, जिससे साइन a माइनस बी हो गया साइन 15 और राइट साइड पे बन गया एक सम। ये चारों वैल्यू पुट करो और जो आंसर आया दैट्स द वैल्यू ऑफ साइन 15। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सिमिलरली cos of a minus b is something 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 something। तुम्हारे पास दूसरा एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है a को 60 लो और b को 45, तो भी a माइनस बी 15 होता है। सो cos 60 माइनस 45 इज cos 60 cos 45 sin 60 sin 45, ऐसा कुछ। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos a minus b, which is equal to cos 60 minus 45, which is equal to cos 15, which is equal to cos 60 into cos 30 plus sin 60 into sin 30 कहाँ से आया 45, हाँ, sin 60 into sin 45। Put the value and find the answer। ट्रू और फॉल्स, टेबल में देख के साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल थीटा, कॉस ए प्लस बी, tan not defined। दिस आई लीव इट ऑन यू एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। छोटा सा एक्सरसाइज है बट खुद करो खुद करो खुद करो, प्रैक्टिस बुक की सेकंड एक्सरसाइज खत्म कर दो तो अच्छे से हाथ बैठ जाएगा। थैंक यू सो मच।